Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji, कैसे हैं सब? So once again I am with first year HSSC-I biology, and my today's topic is lymphatic system, which is from chapter number 12. It is actually the extension of my last lesson. So now it would be basically the time of the quick review, although but I revise it on my own. So this is the lymphatic system. I already have shown you these diagrams. This capillary blood is having a green colored network, which is indicating you the lymphatic system, and there is a diagram as well showing you the components of the lymphatic system. We'll discuss it again. Define. So starting from the definition once again. So basically, the lymphatic system is containing a liquid called lymph. The source of that lymph is the blood plasma. So the portion of the blood plasma that escapes and is becoming the part of the tissues, and now it is called as the tissue fluid or the interstitial fluids, and that it contains oxygen, glucose, amino acid, and other nutrients needed by the tissue cells. So basically, the purpose of this escape is basically to provide all of the nutrients to the tissues, but uh, among the nutrients needed by the cells, there is some of the liquid that is unable to go back to the blood. So this is for this lymphatic system is important. Let's discuss how it is formed, although we have already did it. So blood capillaries, they are, they have high blood pressure, they have, small diameter, they are porous, so they are leaky, right? So that's why blood plasma has to release, has to escape from it. And this blood plasma, obviously, it's coming back to the blood, obviously directly from the tissue to the capillaries, but the main thing is there is some part of the blood plasma which is unable to reach through the normal pattern, so it will going back to the tissue fluid and then through the lymph. So blood plasma is going to the tissues providing the nutrients, and now it is called as the tissue fluid. And this tissue fluid obviously is going back to the blood, but some of the blood which tissue fluid which is unable to go back to the blood circulatory system, so it will taking another pathway, that is the lymph capillary. So it will enter into the lymph capillaries, and whenever it entered into the lymph capillaries, it is now called as the lymph, which is actually composition wise more or less similar to the blood plasma, containing the nutrients, amino acids, water, ions, and but above all, some of the gases, for example carbon dioxide, may be the part of the lymph. That's why it is having some difference with the blood plasma as well, along with the similarities. So let's discuss the components. So we already know the what lymph is. It is of clear watery fluid, spring fluid. The word is used in your book. So lymphocytes and B and T lymphocytes, actually lymphatic system is actually the part of the immune system. So इसके अंदर भी lymphocytes होते हैं. Then the lymphatic vessels, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. इस फिगर में आप देखो, आपको जितनी भी ये लाइंस नजर आ रही हैं, this is actually the network of the lymphatic vessels, and then is lymph nodes. अब आपको जो इसमें इस डायग्राम में डॉट्स डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स यहाँ पे डॉट्स, इधर डॉट्स, ये नेक रीजन में डॉट. सो दीज आर द लिम्फ नोड्स. ठीक है, डिस्कस करते हैं इनको भी, क्या चीज़ें हैं ये. फिर टॉन्सिल्स हैं, हलक में, थ्रोट में होते हैं, ये नज़र आ रहा है आपको इस डायग्राम में. दीज आर द टॉन्सिल्स. वेयर इज माय पॉइंटर, me take it. So these are the tonsils, these are the lymph nodes, this is thymus, and this is spleen. So we have to discuss the spleen and thymus as well. Spleen is actually the part of the digestive system. तिल्ली शायद सुना हो आप लोगों ने. सो स्प्लीन और थाइमस एक ग्लैंड होता है, ये हमारे ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, स्टर्नम के बिल्कुल नीचे, जो हमारी चीज सीने की हड्डी है ना चेस्ट में, स्टर्नम के बिल्कुल नीचे होता है, और इसका नाम होता है थाइमस. सो जनाब ये हो गया, और ये तो सारे कंपोनेंट्स हो गए. चलो अब डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें हैं. सो सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पे आपको दोनों नज़र आ रहे हैं, दोनों में ब्लड है, दोनों में टिश्यूज से वापस जाना है सामान, ठीक है ना. सो लिम्फेटिक सिस्टम बिगिन इन टिश्यू एज lymph capillaries which are far more permeable than blood capillaries. So lymphatic capillaries are far more permeable because it does not have the basement membrane. यानी कि हर सेल्स की जो अरेंजमेंट हुई हुई होती है ना, सपोज करो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है, उसके नीचे एक
बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जिससे ये सारे आगे चिपके हुए होते हैं। तो अब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मिसिंग इन द लिम्फ कैपिलरीज, राइट, ताकि उसकी परमेबिलिटी और भी इनहेंस की जा सके। सो एंड नथिंग इन लिम्फ इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिम्फ कैपिलरीज, और सब कुछ जो होता है वो लिम्फ कैपिलरीज में जब चला जाता है तो बाहर नहीं आता। एक और मजे की बात है, lymph capillaries epithelium function as a series of one-way valve that allows fluid to enter but prevent it from passing back into interstitial space. So ये मजे की बात होती है इसके अंदर कि जो lymph के अंदर चला गया है, नीचे जो ग्रीन जो पैच मैंने दिखाया है showing you the lymph, you know। अब जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो उनके अंदर ब्लड चला गया, जो भी सामान था वो चला गया, लिक्विड था, टिश्यू फ्लूइड, अब बाहर नहीं आ सकता। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये बीडेड अपीयर होती हैं, इनके अंदर होते हैं वेल्व्स। वेल्व आप समझते हैं बैक फ्लो को अवॉइड करने के लिए, तो ऑब्वियसली इसने भी ऊपर हार्ट की तरफ जाना है, तो इसके अंदर भी वेन्स की तरह वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स। अब ऑब्वियसली जिस तरह वेन्स भी नीचे से पहले कैपिलरीज बनी, कैपिलरी से विन्यूल्स, विन्यूल से वेन्स, फिर वेन्स से बड़ी वेन्स, इसी तरह ये भी लिम्फेटिक कैपिलरी से मिलती जुलती मिलते मिलते लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, और फिर आस्ता आस्ता जो उनकी वेन्स की तरह क्या स्ट्रक्चर रिजेंबल भी करता है, वो कह रहा है कि वो थिन भी होती हैं और उसके अंदर वेल्व्स भी होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये आपके पास लिम्फ फ्लूइड है, और यहाँ पे ये इसके वेल्व्स है, और जब आपकी मूवमेंट होती है तो ये इसमें से लिक्विड फ्लो करता है। तो स्मॉल लिम्फ वेसल्स हैव अ बीडेड अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन वे वेल्व्स अलोंग देयर लेंथ दैट आर सिमिलर टू द वेल्व्स ऑफ द वेन्स। तो अभी तक हमने एक बात, सिर्फ आज अभी तक नई बात हमने ये देखी कि एक तो लिम्फ कैपिलरीज जो हैं उनमें से अगर कोई चीज़ एंटर हो जाती है तो फिर बाहर नहीं आ सकती, ठीक हो गया ना, एंड ये एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, चला गया जो वो उसके अंदर चला गया। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसके अंदर वेल्व्स है। तीसरी बात, ये भी उसी लिम्फेट वेन्स के सिस्टम की तरह हम जो कंबाइन करती जाएंगी, और तमाम तर वेन्स, lymph capillaries, they will unite to form a bigger lymphatic vessel like that of the venous system, ठीक है, वो भी उसके सिस्टम की तरह ही। अच्छा, पॉइंट क्लियर हो रहा है ना कि सिमिलैरिटी है इसके अंदर और वेनस सिस्टम में। क्या सिमिलैरिटी है? एक तो इसने भी अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना है, ठीक है, इसने भी अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना है लाइक वेन्स, और इसमें भी वेल्व्स प्रेजेंट हैं, इसकी वेसल्स में भी वेल्व्स प्रेजेंट है, एंड वेल्व्स आप जानते हो बैकवर्ड फ्लो को अवॉइड करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं इसका ड्रेनेज सिस्टम, तो कि किस तरह ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। अब आप इस डायग्राम में देखो, पहले मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। इस डायग्राम में आप देखो, आपको दो कलर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक ये पिंक सा है और एक ये अजीब सा है, ठीक है ना। तो जो पिंक सा है ना, इस बेसिकली द मेरी राइट है तो उस बंदे की लेफ्ट है, ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है, ठीक है। अब यानी कि इस रीजन से लिम्फेटिक सिस्टम को डिफरेंट पाथवे ड्रेन करेगा, और इस रीजन को डिफरेंट लिम्फेटिक वेसल ड्रेन करेंगी, ठीक है। डायग्राम समझ में आ रही है आपको? मगर आपने देखा बाकी सारा लेफ्ट के थ्रू ड्रेन होने वाला है, सिर्फ इतना अपर राइट एक्सट्रीमिटी जो है वो कोई और कर दूसरी लिम्फेटिक यानी कि राइट लिम्फेटिक है वो ड्रेन करेगी इसको। सिर्फ बेसिकली राइट लिम्फेटिक नहीं होती है, थोरेसिक डक्ट होती है। एनीवेज, सो जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, इसको राइट लिम्फेटिक डक्ट लिख दिया गया है, मगर असल में वो थोरेसिक डक्ट कहलाती है, ठीक है ना। मगर चलो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है तो ठीक है, मगर देर इज नथिंग लाइक राइट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। सो देर इज ओनली लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल एंड वन thoracic duct. That thoracic duct is may acting as a right, okay. So that right lymphatic duct is basically much shorter एंड स्मॉलर इन डायमीटर, यानी कि ये भी समझ में आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका कलर सिर्फ यहाँ तक, इस ये चीज ये वाला कलर है, क्योंकि सिर्फ इतने ही रीजन में राइट थोरेसिक डक्ट अपना रोल प्ले कर रही है, जो इसलिए वो क्या है, छोटी है, डायमीटर भी कम है। एंड इट ड्रेन्स द राइट थारेक्स, राइट अपर लिम्ब, ये आप देख लो, राइट अपर लिम्ब, राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, एंड इट ओपन्स इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन। इंटरेस्टिंगली अब यहाँ से ये सारा लिम्फ कलेक्ट किया गया, यानी थोरेसिक डक्ट ने इन सब जगहों से लिम्फ कलेक्ट कर लिया। ये थोरेसिक डक्ट, मेन थोरेसिक डक्ट है, ये ग्रीन से नजर आ रही है। एंड नाउ दिस जो थोरेसिक डक्ट है विल ओपन इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन, ठीक है। सबक्लेवियन वेन वो वेन थी जो आर्म्स को से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती है। इंटरेस्टिंगली लिम्फेटिक सिस्टम ने वेन्स में एंटर होना है,
याद रखना, कभी कैपिलरी ना समझ, कभी आर्टरी ना समझना, ये हमेशा वेन में एंटर होंगे। क्यों? क्योंकि ये टिश्यू से होके आया है ना, उसमें लिक्विड, तो हो सकता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। हम डायरेक्टली इसको आर्टरी में तो नहीं डाल सकते, आर्टरी में तो बॉडी को सप्लाई हो जाता है। तो ये तो चला, जिसको पहले हमें लाजमी लिम्फ में, वेन्स में डालना पड़ेगा, ताकि पहले इसकी प्योरिफिकेशन हो जाए। हो सकता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो पहले ये प्योरीफाई हुआ करेगा। तो याद रखना कि सारी लिम्फ वेसल्स कलेक्ट हुआ यहाँ से। अब आप देख लो यहाँ से, हाथ से, पूरी आर्म से, देन हेड, देन फेस, देन नेक, so all of the lymph collecting from these parts into the thoracic duct, and then this thoracic will open into the right subclavian vein. Same is the case with the left side. Left thoracic duct, it will drain into the lower limbs, it will drain from the lower limbs, because दोनों टांगों से जो lymph आ रहा है वो right, सॉरी, लेफ्ट thoracic duct के अंदर एंटर होगा। ये लेफ्ट thoracic duct चल रही है, और लेफ्ट thoracic duct will open into the um, left thoracic duct will open into the left subclavian vein, ठीक है। ये बात याद रखना। सबक्लेवियन वेन वो वेन थी जो दोनों आर्म से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट कर रही है, ठीक है। सबक्लेवियन वेन वो है। अब राइट वाली राइट से कर रही है, लेफ्ट वाली लेफ्ट से कर रही है। सो द लेफ्ट thoracic duct will open into the left subclavian vein and right thoracic duct will open into the right subclavian vein। ठीक हो गया? यहाँ तो बात समझ में आ गई है। और अब तस्वीर से तुम्हें समझ में आना चाहिए, याद होनी चाहिए, बात याद रह जाए कि जो राइट वाली है वो छोटी है और सिर्फ अपर पार्ट से कलेक्ट कर रही है। अब अपर पार्ट में तुम लोग को याद करना ये मुश्किल है यार। हेड है, फेस है, नेक है, आर्म है एंड शोल्डर है, बस इस रीजन से राइट ने कलेक्ट करना है। और लेफ्ट वाले ने जी जनाब वंस अगेन हेड, नेक, शोल्डर, आर्म, लिम्स, इवन अब ये है कि लोअर लिम्ब से भी इसने लेफ्ट वाली ने ही कलेक्ट करना है। तो लेफ्ट वाली इसका मतलब है बड़ी होगी, उसका डायमीटर भी ज़्यादा होगा। So the lower limbs, abdomen, left thorax, left upper extremity, and the left side of the head and neck. So that duct ends up entering the left subclavian vein. So this is very important to note. Short question भी हो सकता है, how lymphatic system is drained into the venous system. तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे चलते हैं। आई एम होपिंग समझ में आ गई है। सो लैक्टियल्स, लैक्टियल्स पे बात करते हैं। ये लैक्टियल तुम लोग जानते हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक माइक्रोविलाई है। अब ये विलाई है, विलाई के अंदर ये लैक्टियल है, ये ब्लड कैपिलरी है, आप जानते हो ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होती है। और ये कलेक्ट करती है फैट्स को। फैट्स बड़े होते हैं, फैट्स ब्लड कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर पाते। तो लैक्टियल में लिखा हुआ है टाइनी लिम्फेटिक वेसल एब्जॉर्ब्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। तो फैट्स की फाइनल डाइजेशन में क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दे विल एंटर इनटू द लैक्टियल, और लैक्टियल फिर उनको लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बना देती है। इसीलिए यहाँ से फैट कलेक्ट करने के बाद इसीलिए इसका कलर भी वाइट हो जाता है। ऊपर से वाइट लिम्फोसाइट्स भी होते हैं इसके अंदर, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, तो भी इनका कलर, लिम्फ का कलर वाइट होता है। ठीक हो गया। So lacteals are blind-ended structures within the villi of the small intestine. अब ये small intestine में ये भी देख लो आप blind-ended है, ठीक है। The role of the lacteal is to absorb fatty acids, glycerols and fat-soluble vitamins. Fat-soluble vitamins कौन से होते हैं? ए, डी, के, जो आपने घी के डब्बे के ऊपर या ऑयल की बोतल के ऊपर पढ़ लिखे कभी देखे होंगे ना, कहते हैं इसमें विटामिन ए, डी डला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है ना, तो वो कहते हैं हमने इसमें विटामिन भी डाल दिए। चलो अच्छी बात है अगर डाल दिए तो। So these are transported to lymph to enter the circulatory system at the subclavian veins. अब आपको वो सारा रास्ता तो पता चल चुका है, ये बेसिक स्मॉल इंटेस्टाइन से कलेक्ट हो रहा है, मगर ये एंटर किस में होगा? लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में, ठीक है। चलो ओके। देन इज द लिम्फ नोड्स, होते क्या हैं? तो ये एक लिम्फ नोड का कट सेक्शन दिखा रहे हैं आपको, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसकी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सी वेसल्स नजर आ रही हैं, इस ब्लड की सप्लाई भी है इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा कुछ पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम लोग इस पर फोकस रखो। सो दीज आर स्मॉल राउंड ओवल और बीन। अभी मैं पीछे दिखा के आई थी डायग्राम में तुम्हें कि छोटे छोटे जो गोले गोले नजर आ रहे थे, तो ये स्मॉल हैं, राउंड हैं, बीन शेप्ड हैं, ठीक है। साइज इनका 1 to 25 मिलीमीटर्स लॉन्ग है। अब अपना फोटा देख लो, अपना स्केल उठाओ, उसमें देखो जो सबसे छोटी डिवीजन है वो 1 mm की है, ठीक है ना। तो ये कितने 20 लंबा हो सकता है? 25 mm तक हो सकता है। तो स्केल में आप इसका साइज को आइडेंटिफाई कर सकते हो।
कभी आपने नोटिस किया हो कि आपकी जॉ लाइन में नीचे अंदर की तरफ, नीचे की तरफ थोड़ी में नीचे कहीं पेन हो रही हो, शायद कभी नोटिस किया हो कि अचानक से आपको पेन हो रही है, एक गोला सा महसूस हुआ, वो लिम्फ नोड होती है हमारी, ठीक है। या अंडर आर्म्स में दाना सा महसूस होने लग जाता है हमें, हम समझते हैं हमें कोई पिंपल यहाँ वो दाना निकला, मगर वो दाना में फील नहीं होता, मगर उसमें दर्द होता है, तो वो क्या होता है, वो लिम्फ नोड्स, तो वोलन लिम्फ नोड होता है कि आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया है, लेकिन आपकी लिम्फेटिक सिस्टम, सॉरी, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आप वो सिम्टम्स नहीं आने दिए, पकड़ के उसकी पिटाई लगा रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, जो उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पिटाई लग रही है उसकी, और उस पिटाई और उस झगड़े के दौरान वाइट ब्लड सेल्स की भी डेथ हो रही है, तो वो पस बन जाती है ना। तो वो जो पस बन रही होती है जिसकी वजह से डेड वाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं, पस क्या होती है, डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो फिर लिम्फ नोड में जमा होने लग जाते हैं, तो वो लिम्फ नोड स्वोलन हो जाती है और पेनफुल भी हो जाती है, लेकिन वो आस्ता आस्ता खुद ही क्लीन अप कर लेते हैं खुद को। तो लेकिन जब वो आपको अगर स्वोलन महसूस हुआ है या आपको पेन हुई है, तो आप समझ जाते हो कि ये आपको लिम्फ नोड है, या ये कोई वो है, क्या कहते हैं, कोई आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक हो गया। सो डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, आपने, मैंने तस्वीर में आपको दिखाया था, नेक रीजन में है, जॉ लाइन में है, अंडर आर्म्स में है, जिसको आर्म पिट्स आप कहते हो, आर्म पिट्स में है, और ग्रोइन एरियाज, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके इर्द गिर्द हैं, ओपनिंग्स होती है ना, वहाँ पे जम्स के एंटर होने का रास्ता है। ओके, और ये अब करते क्या है, दे फिल्टर द लिम्फ, अब जब उसके अंदर से लिम्फ गुजर रहा होता है, और अगर लिम्फ में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो लिम्फ नोड में वाइट ब्लड सेल्स बैठे हुए होते हैं, वो कहते हैं ओहो ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, वो उसको पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं, और इसलिए वो फिर उसमें वाइट ब्लड सेल्स की डेथ भी होती है। सो दे फिल्टर द लिम्फ, फिल्टर कर रहे होते हैं, किससे फिल्टर करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जाने नहीं देते, रिमूव बैक्टीरिया, और जो लिम्फोसाइट असेंबल, फंक्शन एंड प्रोलिफरेट विद इन द लिम्फ नोड, तो ऑब्वियसली उसके पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, वहाँ पैदा हो रहे हैं, पैदा तो वहाँ नहीं होते, खैर वहाँ जाके जब बड़े होते हैं तो अपना काम कर रहे हैं, सही है। तो लिम्फ नोड समझ में आया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे सिस्टम में। ये आगे स्प्लीन, स्प्लीन कहते हैं, तस्वीर में मैंने दिखाई हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम का वैसे बेसिकली ये पार्ट है, और उसको उर्दू में कहते हैं तिल्ली, ठीक है। अब जो स्प्लीन है ये तिल्ली भी कहलाती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी, इम्यून सिस्टम का भी, और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का भी। सो बेसिकली हाउ इट वर्क्स, तो ये करती क्या है, ये करती है जनाब कि, ये कभी आपने हेपेटाइटिस का पेशेंट कोई सुना हो, तो उसकी ना एनलार्ज्ड स्प्लीन होती है, मतलब सुवोलन स्प्लीन होती है। अगर स्प्लीन किसी की सुवोलन, अगर देखो अभी तुम्हारे लिम्फ नोड मैंने बताया, आम सी बात है, सुवोलन हो जाते हैं, तो वो अगर वो सुवोलन है तो ठीक हो जाएंगे थोड़े दिनों में, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर कम है बॉडी में। लेकिन सुप्लीन, अगर सुप्लीन एनलार्ज्ड है, जैसे हेपेटाइटिस का कोई पेशेंट होता है ना, उसकी सुप्लीन बढ़ जाती है, कहते हैं तिल्ली बढ़ गई है, तो वो क्या वजह होती है, इसका मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर इतना बढ़ चुका है कि सुप्लीन, सुप्लीन के अंदर ना दो खाने बने हुए होते हैं, एक में से ब्लड गुजरता है, एक में से लिम्फ गुजरता है, तो जो लिम्फ गुजर रहा होता है ये ब्लड में से लिम्फ ना पिक करता है, फिर उसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ये पिक कर रहा होता है उसमें से जर्म्स को, तो और अगर जर्म्स ने बहुत ज़्यादा पिक कर लिए तो अंदर वाइट ब्लड सेल्स की डेथ हो रही है, तो वो स्वोलन हो जाती है, ठीक है। सो मारते मारते जर्म्स को वो स्वोलन हो जाते हैं ना, फिर वो, सो located in the upper, जो इसके क्वेश्चन देख लो, upper left abdominal cavity beneath the diaphragm and it is a lymphoid organ, ये एक lymphoid organ है क्योंकि इतना बड़ा सा पार्ट है, और ये जनाब डायफ्राम जहाँ पे रिब्स एंड अप हो रही है ना, वहाँ ऊपर अपर लेफ्ट साइड पर, क्योंकि लेफ्ट साइड पर ही जगह होती है ना, आपको पता है वहाँ पे लंग थोड़ा छोटा होता है, तो वहाँ पे, यहाँ वहाँ पे ये एडजस्टेड है। सो इसका फंक्शन क्या है जी, फिल्टर करती है ब्लड को, स्टोर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो नॉर्मल काम चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू द जनरल सर्कुलेशन, अब इसके अंदर भी आया होता है ना टिश्यू फ्लूइड, तो और प्रोडक्शन ऑफ टी lymphocytes, red blood cells and enzymes. So basically suprine is very very important, and it is a major part indicating that there is an infection in your body. So the functions of lymphatic system पे आप जाते हैं generally. So lymphatic system has three main functions. It maintains the balance of fluid between the blood and the tissue known as fluid homeostasis. ये पक्के याद कर लो, ये अलग से हेडिंग बना के लिखना, अगर लिम्फेटिक सिस्टम पे नोट आता है, डिटेल्ड क्वेश्चन आता है, तो अलग से हेडिंग ज़रूर दे के ये लिखना है आपने, that it maintains the balance of body fluid, ठीक है ना।
Obviously, it forms part of the body's immune system and helps defend against bacteria, and it facilitates absorption of fats, fat soluble nutrients, and in the digestive. ये तीन काम आपने इसके ज़रूर हाईलाइट करके लिखने हैं. ओके, जिसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़े से आप लोगों ने डिफरेंसेस डाले हैं, प्लाज्मा वर्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड. अब प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये पता होगा, आप कोई भी चीज़ें इसके बारे में लिख सकते हो. प्लाज्मा रेफर्स टू द कलरलेस फ्लूइड है, जबकि इंटरस्टिशियल का कलर तो थोड़ा सा वाइट सा हो जाता है. और लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, fluid between the tissue, contains high protein, contains low protein, contains more oxygen, contains less oxygen, contains more less carbon dioxide, contains more carbon dioxide, and dissolves blood cells. ये blood cells के इर्द गिर्द present है, जबकि इट पाथ्स द टिश्यू सेल्स. देखो ज़रूरी है ना, वरना सेल्स ड्राई अप हो जाएंगे, इसका आना भी ज़रूरी है, ठीक है ना. एक और डिफरेंस मैंने डाला है लिम्फेटिक कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज का. ये आपके टेक्स्ट में भी था, मैंने वहाँ डिस्कस नहीं किया, इसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया. डेफिनेशंस में आ जाओ. कैपिलरीज आर फाउंड इन द लिम्फेटिक एंड दैट इज फाउंड इन द ब्लड. देन फ्लूइड प्रेजेंट, इसके अंदर लिम्फ प्रेजेंट है, इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है, इसके अंदर आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होंगे, जबकि इसके अंदर आरबीसीज और प्लेटलेट्स नहीं प्रेजेंट हो सकते, ठीक है. हाँ, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं ना, डब्ल्यूबीसीज टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो टिश्यू से लिम्फ में शायद चढ़ गए हैं वहाँ से, ठीक है, और चढ़ते चढ़ते हैं ही वहीं से. फिर स्ट्रक्चर इसका माइक्रोस्कोपिक है, विद एंड्स दैट आर नॉट क्लोज, मेड ऑफ एंडोथेलियल cells, एंड माइक्रोस्कोपिक विद सिंगल लेयर ऑफ cells forming an endothelium, ends are not closed but form a loop. यहाँ तो लूप बनता है ना, जबकि कैपिलरीज आपको पता है वो ब्लाइंड एंडेड होती हैं. Receive and transport filtered blood plasma and interstitial, which are important in immunity. Transport blood, which is responsible in exchanging thoracic duct and right lymphatic duct. Venules absent, present. Basal lamina इसमें absent है, इसमें present है. और इसमें डायमीटर इनका वाइडर होता है, इनका नैरो होता है, ठीक है ना. बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें होती है. तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं. इसके अंदर जो ड्रेन होता है वो आपको याद है थोरेसिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, यहाँ पे लेफ्ट है, ठीक है ना, याद रखना. राइट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक, तुम चुप करके राइट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट लिखो, ठीक है. और विन्यूल्स, चलो ओके, ठीक हो गया. ये तो था एंड. सो अब और कोई क्वेश्चन हो मुझे ज़रूर बताना, कोई बात जो समझ में नहीं आए. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड. बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस साल बन गया है बिकॉज ऑफ द रिड्यूस सिलेबस एंड बिकॉज ऑफ द यू नो कि वो आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे उनके एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे. चलो ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.